So students, example of monosaccharides are glucose, galactose and fructose. So, sorry, this is the structure of glucose, this is the structure of galactose and this one is the structure of fructose. These all are carbohydrates isomers. What do you mean by isomers? All have the, means all three have a same molecular formula but different arrangement of atoms. Clear? सबका molecular formula क्या है students? C6H12O6 but सबका सब में arrangement of atoms क्या है? Different है. Clear? So next is the example of disaccharides. So there are three examples of disaccharides. First one is the sucrose. Sucrose is made up of, sucrose is made up of glucose plus fructose. Clear? और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बीच में जो bond है, this one is the O-glycosidic bond. Clear? Second one is the lactose. So lactose is made up of galactose plus glucose. This one is the galactose and this one is the cyclic structure of glucose. The bond between the galactose and glucose is also the glycosidic bond. And the third example of disaccharides is maltose. Maltose is made up of two glucose molecules. So this one is the first glucose molecule, this one is the second glucose molecule. So bond between the two glucose molecule is also a glycosidic bond. Why? Because student, we have go through earlier with that point that two saccharides molecules के बीच में जो bond होती है that is the glycosidic bond and this bond is formed by the removal of water molecule that is H2O. Clear? Next is the example of oligosaccharides. So first example of oligosaccharide is raffinose and second example of oligosaccharide is stachyose. So raffinose is made up of galactose, glucose and fructose. Clear? And stachyose is made up of two galactose, one glucose and one fructose. Next is the example of polysaccharides. So polysaccharides का first example क्या है हमारे पास? Starch. So students, starch is a mixture of two polysaccharides. So first one is the amylose and second one is the amylopectin. Clear? So what is the difference between amylose and amylopectin? ठीक है, अमाइलोज स्टार्च में कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 15 to 20%. एंड अमाइलोपैक्टिन स्टार्च में कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 80 to 85%. क्लियर? On the basis of structure, there is also a difference between amylose and amylopectin. So amylose का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अनब्रांच्ड. ठीक है, और लीनियर फॉर्म में होता है. यू सी दैट स्ट्रक्चर. वेट, this structure is unbranched, there is no any branches in this structure and this one is the linear structure. And second is the amylopectin. So amylopectin is highly branched structure. See here, this one is the highly branched structure and here the branch point appear after every 24 to 30 glucose in straight chain form. मीन्स 24 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्ट्रेट चेन होती है, उसके बाद ब्रांच जो है इसकी फॉर्म होती है.
Clear? So what you people have to remember, that amylose is a linear and unbranched structure and amylopectin is highly branched. Clear? So here we discuss about the linkage between the amylose and amylopectin. So students, here the linkage between the amylose is alpha 1,4 glycosidic linkage. Clear? This one is the alpha 1 and this one is 4 position. Clear? So here the linkage is shown, that is the alpha 1,4 glycosidic linkage. Clear students? And in amylopectin the linkage is two type. First one is the alpha, this one is the first position of carbon, and here in second cyclic this one is the fourth position. तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है. This one is the, this carbon is the sixth carbon, see here, and this one is the first carbon. तो फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच में कौन सी लिंकेज होती है स्टूडेंट्स? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. So from this point you have to clear about the linkage. In amylose the linkage shown is alpha 1,4 glycosidic linkage, and in amylopectin two type of linkage. First one is the alpha 1,4 glycosidic linkage and second one is the alpha 1,6 glycosidic linkage. Clear? So what we are discussing about the amylose and amylopectin. First point that we have to discuss, that is amylose is a unbranched and linear chain. Clear? And second, in amylopectin is highly branched. ठीक है? स्टार्च में अमाइलोज कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? 15 to 20% and amylopectin is 80 to 85%. इन अमाइलोज लिंकेज इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसका फर्स्ट कार्बन एटम एंड इस सेकेंड साइक्लिक कंपाउंड का फोर्थ कार्बन एटम आपस में जो लिंकेज शो कर रहे हैं, दैट इज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्लियर? And here in amylopectin two type of linkage is formed. First one is the alpha 1,4 glycosidic linkage, and in this cyclic compound sixth carbon involved, and from this cyclic compound first carbon is involved. So here is alpha 1,6 glycosidic linkage is formed. So 3 points are cleared about amylose and amylopectin that will show the difference between these two structure. So let's proceed towards next slide. Second example of polysaccharide is glycogen. Glycogen is the animal starch and polymer of glucose unit. Clear? So here show the linkage. This one is the fourth carbon atom. Wait. In this structure you can see clearly, that's why I am adding this slide for you. Here in this cyclic structure, this one is the first carbon position and this one in second cyclic structure, this one is the fourth carbon. So अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है. क्लियर है? और यहाँ पे इसका सिक्स कार्बन और इसका फर्स्ट कार्बन, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. ठीक है? क्लियर? एनी कंफ्यूजन? So we will proceed towards the next slide. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड इज द सेलुलोज. ठीक है? और सेलुलोज में जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. क्लियर है स्टूडेंट्स? हियर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. स्टूडेंट लिसन, आपने अल्फा और बीटा में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है? मैंने आपको बताया है क्लियरली कि अल्फा ग्लूकोज क्या है, बीटा ग्लूकोज क्या है. ठीक है? तो उस चीज को माइंड में
ध्यान रख के, ठीक है, आपने यहाँ देखना है कि यहाँ पे कौन सी लिंकेज शो हो रही है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बोन या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, सो हियर हमने कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन पढ़ ली, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर लिया और फर्दर एग्जांपल्स जो भी थे वो हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर? नो, वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेनली क्या होता है बच्चे, जो NADH है और जो FADH2 है वो कन्वर्ट होते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। क्लियर है? सो NADH stands for nicotinamide adenine dinucleotide and FADH2 stands for flavin adenine dinucleotide. Clear? So मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट, और हम इसे और क्या बोल सकते हैं, पाथवे ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है बच्चे, ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स शुगर, एंड लिसिस मतलब स्प्लिटिंग। क्लियर? तो ग्लाइकोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपने +2 में पढ़ा है, ठीक है। One glucose molecule will gives us two pyruvate molecules. Clear? The pathway of oxidation of glucose to yield energy. ठीक है, द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू यील्ड एनर्जी। मीन्स जब भी कोई, मान लो जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, तभी हम बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, दीज ऑल आर द बायोमोलिक्यूल, ठीक है। और हम, और सेकंड हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में भी आपके क्या आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है। जब इन सब की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट विल गिव अस अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर? you know that there is a difference between breathing and respiration. What is breathing? In breathing, exchange of gases. Which gases are exchanged? Oxygen and carbon dioxide. So, and what is respiration? In respiration, ठीक है, ऑक्सीजन, सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, and that will provide us a energy, that is respiration. So in glycolysis what happen, oxidation of glucose and that will provide us a energy. So हम लोग ग्लाइकोलिसिस को AMP पाथवे भी बोलते हैं, why, because of these scientists, that is Evander, Meyerhof, Paranus, ठीक है, pathway. Clear? Next, glycolysis is a universal pathway. Why we call glycolysis
as an universal pathway because my students, glycolysis occurs in cytosol. व्हाट इज साइटोसोल? साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है दैट इज द साइटोसोल. अब माय स्टूडेंट्स, आप भले ही, अच्छा आप सोचो प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म तो होता है ना, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में देखो, यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है. तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है, या फिर बोल लो साइटोसोल में हो रही है, ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी साइटोसोल है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी साइटोसोल है. दैट्स व्हाई वी कॉल ग्लाइकोलिसिस as an universal pathway. Clear? Do not have a necessity to oxygen. ग्लाइकोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाती है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, ठीक है. तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं? एनारोबिक पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है. अगर कभी आपको कभी भी क्वेश्चन आए एंट्रांस में कि कौन सा आपको ऑप्शन दिए हो फर्दर ग्लाइकोलिसिस, क्रब साइकिल एंड ठीक है, तो कौन सा एनारोबिक पाथवे है? तो ग्लाइकोलिसिस इज द एनारोबिक पाथवे बिकॉज ग्लाइकोलिसिस अक्कर इन एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. एरोबिक में भी हो सकती है, एरोबिक क्या मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, ठीक है. और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है, ठीक है. इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं होती है, क्योंकि देखो आपने फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन तो सभी ने देखी होगी, ठीक है. जब ग्लूकोज को हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ना वहां पे, हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O मिलता है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है. अंडरस्टैंड? सो हेयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है, क्योंकि हमें ग्लूकोज, जब फर्दर ग्लूकोज के बाद हमें इसमें क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल. तो हेयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है. क्लियर? तो हेयर इन ग्लाइकोलिसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है. क्लियर माय स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस के साइकिल पढ़ेंगे. ओके, so glycolysis is divided into two phases. फर्स्ट फेज क्या होता है हमारा? प्रिपरेटरी फेज और ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज. सॉरी, फर्स्ट फेज इज द प्रिपरेटरी फेज एंड ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, ठीक है. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? इस फेज में एनर्जी खुद से लगानी पड़ती है, हमें एटीपी खुद से लगानी पड़ती है, ठीक है. और सेकंड इज द पे ऑफ फेज. पे ऑफ फेज में हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, हमें एटीपी मिलती हैं. प्रिपरेटरी फेज में हम एटीपी लगाते हैं और पे ऑफ फेज में हमें एटीपी मिलती हैं. क्लियर? सो हमने ग्लाइकोलिसिस को 2 फेजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज द प्रिपरेटरी फेज एंड इसे हम लोग ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी बोलते हैं, जिसमें हम एटीपी लगाते हैं. एंड सेकेंड इज द पे ऑफ फेज, जिसमें हमें एटीपी मिलती है. क्लियर माय स्टूडेंट्स? सो वेट, next here in this reaction complete oxidation of glucose will show. ठीक है, जब बच्चे ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, 6O2 के साथ in the presence of 6H2O that will give us a CO2 and H2O plus energy. एनर्जी 36 ATP भी फॉर्म हो सकते हैं और 38 ATP भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है. तो किन्हीं बुक्स में 36 लिखा होता है, किन्हीं बुक्स में 38 ATP लिखा होता है. अगर आप अपनी NCERT की बात करोगे तो उसमें 38 ATP लिखा है मे बी. तो दिस इज बिकॉज ऑफ शटल सिस्टम, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे शटल सिस्टम के बारे में. क्लियर? तो माय स्टूडेंट्स, व्हाट you keep in mind that in complete oxidation, बच्चे जब भी complete oxidation होती है तो हमें end product
क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है, क्लियर है, ठीक है। बट इन पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस में बच्चे मैंने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, मींस ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलते हैं, दैट्स व्हाई इन ग्लाइकोलिसिस वी सेड दैट पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अकर। और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्यों होती है, क्योंकि बच्चे ग्लाइकोलिसिस एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है। मतलब ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन दो भले ही ना दो, इतनी नीड नहीं होती उसे ऑक्सीजन की, क्लियर है। हर एक चीज तुमने रट्टा नहीं मारना है, हर एक चीज में तुमने रट्टा नहीं मारना है, तुमने समझ के पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, क्लियर।